Here the question is, consider a two-level system in which the excited state is separated from the ground state by energy epsilon is doubly degenerate. The fraction of molecules in the excited state as temperature tends to infinity is. यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट दी गई है, ओके, एंड देयर इज अ वन एक्साइटेड स्टेट, and that excited state is what? Doubly degenerate. It is what? Doubly degenerate. Okay, and the difference between the energies of the excited state and the ground state is what? Epsilon. ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट दी गई है और एक डबली डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट दी गई है. दोनों में का डिफरेंस क्या है? एप्सिलॉन है. सपोज इसकी एनर्जी 0 है और इसकी एनर्जी क्या है? एप्सिलॉन है. तो हमको फाइंड आउट करना है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट व्हेन T टेंड्स टू इंफिनिटी इज. तो यहाँ पे एक ट्रिक है, जब भी टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो in order to find out the fraction of molecules present in the given state is fraction is equal to degeneracy of that given state divided by total degeneracy of both the states, total degeneracy of the given system. तो यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड स्टेट की degeneracy और एक्साइटेड स्टेट प्लस ग्राउंड स्टेट की degeneracy, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है. तो एक्साइटेड स्टेट की degeneracy क्या दी गई है? It is a doubly degenerate, its value is 2. Okay, so here also 2 excited state और ground state की क्या है degeneracy? 1. Only one level is here. यहाँ पे 2 लेवल दी गए हैं, इसका मतलब क्या? वो एनर्जी क्या है? डबली डिजेनरेट है. यहाँ पे एक ही लेवल दी गई है, ये क्या है? ये सिंगली डिजेनरेट है. ओके, इट इज अ नॉन डिजेनरेट लेवल. सो 2 अपॉन क्या आएगा? 3. सो व्हाट इज दिस? इज व्हाट आवर आंसर. ये क्या है? हमारा आंसर है 2/3. ओके, यहाँ पे क्या किया? दिस इज अ ट्रिक. ये आप लोग याद रख सकते हो फॉर्मूला. Number of fraction of molecules present in that given state is what? The degeneracy of that state to the total degeneracy of the given system. Okay? तो कितना है degeneracy excited state का? 2 है और 2 plus 1 क्या है? 3 है. तो यहाँ पे क्या हो गया? 2/3. This is the one way of finding the answer. Another method is what? From the definition. From the definition of fraction of molecules, it is what? The degeneracy of that given state multiplied by e raised to minus epsilon kt divided by total degeneracy E0 into e raised to minus epsilon upon kt plus degeneracy of excited state e raised to minus epsilon by kt. यहाँ पे क्या हुआ? एक्साइटेड स्टेट अपॉन ग्राउंड स्टेट प्लस एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पे हमको क्या दिया है? लेकिन टेम्परेचर क्या है? 0 है. व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 देन e रेज टू माइनस एप्सिलॉन बाय टी. टी क्या है? इंफिनिटी है. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं when temperature tends to infinity e raised to minus epsilon upon t will be equal to what? 0. Will be equal to what? 0. Why? e raised to क्या हो जाएगा? e raised to minus 1 upon infinity हो जाएगा. 1 upon infinity मतलब क्या? e raised to 0 हो जाएगा. e raised to 0 मतलब क्या? ये क्या हो जाएगा? 1 upon e raised to 0. Anything raised to 0 is what? 1. So 1 upon 1 is equal to what? 1. तो हम लोग यहाँ पे जब भी वैल्यू पुट करते हैं degeneracy of that given state that is 2 into e raised to epsilon by kt. टेम्परेचर क्या है? इंफिनिटी है. तो ये ओवरऑल वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय degeneracy of ground state क्या है? 1. ये क्या हो रहा है? एनर्जी यहाँ पे 0 है. degeneracy ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या थी? एप्सिलॉन थी. तो ये 0 अपॉन ये ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? 1 आएगा. ओके, प्लस यहाँ पे वही है तो 2 into 1. तो ये क्या हो गया? 2 divided by 3. So this is what our correct answer. 2/3 are the fraction of molecules present in that given state.
in that given excited state. Here the question is titration of 4.4 gram of polymer having carboxylic acid end group requires 11 ml of 0.02 molar NaOH. What will be the average molar mass of the given polymer in kg per mole? यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे मोलर मास जो है पॉलीमर का वो हमको ढूंढना है. तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक पॉलीमर चेन है, उसमें COOH ग्रुप कंटेनिंग पॉलीमर चेन है. उसको जब NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं तो हमको एक क्या हो रहा है, COOH का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. ओके, एंड प्लस H2O. ओके, तो ये रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे हमको NaOH कितना लग रहा है, 11 ml एंड व्हाट इट्स मोलरिटी 0.02 मोलर. ओके, वेट क्या है पॉलीमर का, 4.4 ग्राम ऑफ पॉलीमर का टाइट्रेशन जब हम NaOH से कर रहे हैं तब 11 ml NaOH लग रहा है जिसकी मोलरिटी 0.02 मोलर है. तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ गिवन पॉलीमर. पॉलीमर का मोलर मास कितना है वो हमको यहाँ पे ढूंढना है. तो हम लोगों को पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये जो एसिड था इसमें जब हम लोग NaOH डाल रहे हैं तो जितना एसिड प्रेजेंट है उतना ही NaOH उसको लगेगा. ओके, सो हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COOH, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो NaOH के मोल्स कितने हैं? So from the definition of molarity, what is molarity? Moles, number of moles to volume, number of moles to the volume. Okay, so molarity कितनी दी है, 0.02 into volume कितना है, 11 ml is what number of moles of NaOH. These are what number of moles of NaOH which are similar to the number of moles of COOH present. क्योंकि उतने NaOH लगे हैं इसका मतलब क्या, उतने ही COOH अपने पॉलीमर में प्रेजेंट थे. ठीक है, तो ml को मैं क्या करती हूँ, लीटर में कन्वर्ट करती हूँ, 11 into 10⁻³ लीटर. सो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इट विल बिकम 2.2 into 10⁻⁴ लीटर. दीज आर व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH पता चल गई. यही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, these are also what number of moles of COOH. Now I know the number of moles of COOH. I have the weight of COOH present in the given polymer. I have weight of that given polymer. तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकती हूँ, एवरेज मास कैलकुलेट कर सकती हूँ. क्या है डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो हमको ये मॉलिक्यूलर एवरेज मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन N. What is W? What is the weight given? 4.4. And what are the number of moles we got here? 2.2 into 10⁻⁴. यहाँ पे इसका यूनिट है ग्राम, इसका यूनिट क्या है, लीटर नहीं होगा, ये ml था, इसका मोलरिटी था यूनिट. ओके, मोलरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स टू द लीटर. तो लीटर गया, इसका यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, मोल्स. ओके, दीज आर व्हाट मोल्स. सो यहाँ पे क्या आएगा, मोल्स, यहाँ पे ग्राम. ओके, तो ये इसको ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 2 into 10⁻⁴ ग्राम पर मोल. ओके, बट यहाँ पे हमको आंसर किसमें पूछा है, kg पर मोल. तो ये ग्राम को, सॉरी ये -4 ऊपर जाके क्या होगा, +4 होगा. ओके, सो 2 into 10⁻⁴ ग्राम पर मोल आ रहा है आंसर. लेकिन हमको किलोग्राम में पूछा है आंसर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो 2.2 into 10⁻⁴ ग्राम पर मोल, we can write it as, sorry, 2 into 10⁻⁴ ग्राम पर मोल, we can write it as 20,000 ग्राम पर मोल. ओके, डिवाइड करो 1000 से, किलोग्राम मिल जाएगा. सो 20 kg पर मोल will be what our answer.
Okay, so average mass of this given polymer is what 20 kg per mole. यहाँ पे हमको kg में पूछा था आंसर, इसलिए हम लोगों ने kg में कैलकुलेट किया है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर. और यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, फ्रॉम द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स we are getting the answer here. So this is what our correct answer, 20 kgs per mole. Here the next question is, the cell potential of a AgCl KCl electrode connected to the standard hydrogen electrode at 298 Kelvin is closest to. यहाँ पे हमको सेल पोटेंशियल जो है वो निकालना है. यहाँ पे कौन सा सेल है, AgCl KCl, it is connected to what, standard hydrogen electrode. इसका E0 हमको दिया है, given is what, E0 value of AgCl conversion to AgCl minus. So यहाँ पे AgCl minus is equal to what, 0.222 volt. And for standard hydrogen electrode, its E0 is what, always 0 volt. ओके, तो यहाँ पे हमको ये E0 दिया हुआ है और हमको E सेल निकालना है. वी हैव टू डिटरमाइन E ऑफ अ गिवन सेल. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCl का कन्वर्जन AgCl माइनस में हो रहा है. AgCl इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AgCl माइनस. ये कब होगा, जब रिडक्शन रिएक्शन होगी तब. सो हियर रिडक्शन इज ऑकरिंग, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, AgCl कैप्चरिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्टेड इनटू AgCl माइनस. बाद में क्या होगा, ये इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस. ये क्या है, सॉलिड. दिस इज आल्सो सॉलिड एंड दिस इज व्हाट, एक्वियस. ओके, Ag प्लस प्लस Cl माइनस. आफ्टर दैट हम लोगों को यहाँ पे E सेल निकालना है. फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट E सेल इज इक्वल टू E0 of AgCl minus 0 point minus क्या होता है, 2.303 minus 2.303 RT upon NF log of product upon reactant. Okay, so this is what our Nernst equation. So by using Nernst equation we have to solve this given question. E0 सेल हम लोगों को दिया हुआ है, टेम्परेचर हमको यहाँ पे दिया है 298 केल्विन, log of product activity to the reactant activity. Okay, so let's put all this value here and calculate E cell. तो यहाँ पे E cell क्या होगा, E cell is equal to, ये जो क्वांटिटी है वो पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया है, 298 केल्विन. सो whenever temperature is 298 Kelvin, then that value 2.303 R के वैल्यू क्या है, 8.314 into 298 divided by what, 96500. Okay, Faraday's constant, this is value for 2.303 RT upon F. Okay, this is equal to 0.0591. Okay, ये क्या होती है वैल्यू, 0.0591 हो जाती है. तो लेट्स पुट हियर दैट वैल्यू. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है, 1. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन दिस गिवन रिएक्शन. तो ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ओके, E0 का वैल्यू क्या है, 0.222. सो हियर E cell will be 0.222 minus ये 0.0591 upon 1 log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट. ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनकी एक्टिविटी क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1. फॉर Cl माइनस ओनली वी हैव टू सी द एक्टिविटी. तो हमको एक्टिविटी यहाँ पे KCl की दी हुई है, दैट इज व्हाट 0.01. दैट वैल्यू वी हैव टू यूज हियर 0.01. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज 0.222 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0.0591 log of ये क्या हो जाएगा, 1 into 10 raised to minus 2. 1 into 10 raised to minus 2. तो log of 10 raised to minus 2 क्या होगा हमारा, 0.222
0.22 माइनस 0.0591, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू लॉग ऑफ 10। लॉग 10 क्या होता है? 1 होता है। सो मल्टीप्लाई करो इसको इससे, क्या होगा आंसर? 0.222 माइनस दिस क्या हो जाएगा? 0.118। ओवरऑल सम करो इसकी, आंसर आएगा 340 वोल्ट। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। सम करो इसकी, आंसर क्या आएगा? 0.340 volt. So this is what our correct answer. We have to calculate the cell potential of a given cell. Here the next question is identify the following. The product of K capture by the nucleus are A न्यूट्रॉन, बी न्यूट्रिनो एंड सी पोजिट्रॉन। और हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको पता करना है कौन से प्रोडक्ट हमको के कैप्चर जो प्रोसेस होता है उसमें मिलते हैं। सो व्हाट इज के कैप्चर? के कैप्चर, सो जब हमारा न्यूक्लियस होता है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर ऑफ दैट one shell, second shell, suppose this is K, L, M, N in that way. Okay, so यहाँ पे जो K शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो जब न्यूक्लियस क्या करता है? कैप्चर करता है। When the electron present in the K shell is captured by the nucleus, then what happen? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा? Those proton will combine with the electron and there will be the formation of what? Neutron. There will be the formation of neutron. यहाँ पे क्या है? 1 1, यहाँ पे क्या है? -1 0। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? चार्ज यहाँ पे क्या होता है? 0 एंड यहाँ पे 1। ओके, सो न्यूट्रॉन फॉर्म होता है और देयर इज अ इमिशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज नोन एज न्यूट्रिनो, विच इज नोन एज न्यूट्रिनो। तो जब के कैप्चर होता है न्यूक्लियस का, तब जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होता है मींस व्हाट? नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। नियरेस्ट न्यूक्लियस को कौन सी शेल है? के, आइदर के और एल। के और एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? न्यूक्लियस कैप्चर करता है खुद के पास। उस वजह से क्या होता है? जो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, दैट प्रोटॉन कंबाइंस विद द इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ओके, न्यूट्रिनो क्या होता है? इमिट होता है। ओके, एंड न्यूट्रॉन इज व्हाट? चार्जलेस पार्टिकल, और इन दैट वे द प्रोसेस ऑफ के कैप्चर ऑकर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन भी मिलेगा और न्यूट्रिनो भी मिलेगा एज अवर बाय प्रोडक्ट। सो अवर ऑप्शन इज ए एंड बी। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉमन ग्लास इलेक्ट्रोड अल्कलाइन एरर कॉज्ड एट पीएच ग्रेटर देन 10 विल बी लीस्ट फॉर। यहाँ पे हमको 4 सॉल्यूशंस दिए गए हैं और हमको पता करना है कि किस सॉल्यूशन के लिए जो अल्कलाइन एरर होगा, जो ग्लास इलेक्ट्रोड दिखाता है व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन 10, ओके, तो वो जो अल्कलाइन एरर है वो किस सॉल्यूशन के लिए कम होगी, वो हमको यहाँ पे पता करना है। तो सपोज करो कि एट द पीएच ग्रेटर देन 10 और pH greater than 12 क्या होगा? concentration of H plus ion will be very less as compared to the alkaline ion present here, alkaline ion which is a positive. Okay, H plus ion concentration क्या होता है? कम होगा as compared to the positive alkaline ion present in the given solution. Suppose this is our glass electrode, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डीप किया है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। उसका पीएच क्या है? ग्रेटर देन 10 और 12। जब ग्रेटर देन 10 और 12 होता है पीएच, तभी अल्कलाइन एरर हमको दिखती है। ठीक है, तब क्या होगा? इसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट है कुछ, ठीक है, और बाहर जो आयंस प्रेजेंट है पॉजिटिव आयंस डिफरेंट देन H प्लस आयन, ठीक है, डिफरेंट देन H प्लस आयन, वो क्या होंगे? Those ions will come closer to the membrane and that's why what will happen? The glass electrode will respond to those ions rather than responding for the H plus ion present in the given solution. ठीक है, suppose यहाँ पे NaOH है, ठीक है, अल्कली प्रेजेंट है NaOH, तो क्या होगा? ये ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है और आउटर शेल में क्या है? H प्लस आयन, आउटर बीकर में क्या है? H प्लस आयन concentration is very less as compared to the Na plus ion concentration.
ओके, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द Na प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। उस वजह से क्या होगा, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है इट विल रिस्पॉन्ड फॉर द Na प्लस आयन प्रेजेंट, इट विल रिस्पॉन्ड फॉर द Na प्लस आयन प्रेजेंट। और उस वजह से क्या होता, वो जो pH होगा, pH की जो वैल्यू होगी इट विल डिफर फ्रॉम द एक्चुअल pH वैल्यू, इट विल डिफर फ्रॉम द actual pH value of a given solution, of a given solution। actual जो pH आना चाहिए था उससे वो क्या होगा, डिफर होगा। क्यों? क्योंकि pH में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में वो फाइंड आउट करते हैं। जब ऐसे अल्कलाइन सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ, तो क्या करेंगे, वो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम होता है, वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अल्कलाइन आयन प्रेजेंट। उस वजह से क्या होता है, वो जो ग्लास इलेक्ट्रोड है rather than responding for H plus ion it starts to respond for Na plus ion। और Na plus ion क्या करते हैं, पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस करते हैं H plus ions को, और उस वजह से अपना ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो आयन को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमको pH की वैल्यू मिलती है दैट डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल pH वैल्यू, और इस वजह से जो pH के मेजरमेंट्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन से सॉल्यूशन के लिए वो जो pH चेंज होगा वो कम होगा, वो जो pH चेंज होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, NaCl, NaCl, NiCl एंड KCl। तो यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, Na प्लस, here also Na plus, here Li plus and here K plus। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम दिया हुआ है। यहाँ पे आयन एक्सचेंज होने वाला है, here near to the glass electrode ion exchange process occurs in which we have to consider the size of a given ion, we have to consider the size of a given ion। तो यहाँ पे इनका साइज कैसे है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। ओके, सो साइज ऑफ दीज आर इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना कम क्या होगा, pH में जो वैल्यू का मेजरमेंट है गलत होने का वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड LiCl के सॉल्यूशन में है, NaCl के सॉल्यूशन में है एंड नेक्स्ट इन द KCl सॉल्यूशन। तो Li आयन क्या है, उसका साइज कम होगा, तो वो ग्लास इलेक्ट्रोड को ज्यादा आयन सराउंड करेगी। ज्यादा आयन सराउंड करने के कारण क्या होगा, pH में ज्यादा चेंज दिखाई देगा। जब सॉल्यूशन Na प्लस आयंस को सराउंड करेगा, जब अपना ग्लास इलेक्ट्रोड Na प्लस आयंस को सराउंड करेगा, तब Na प्लस आयन का साइज क्या है, Li प्लस आयन से थोड़ा ज्यादा है, तो कम Na प्लस आयंस सराउंड करेंगे एज कंपेयर टू Li प्लस आयन। और K प्लस आयन का साइज क्या है, ज्यादा है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ आयन विल सराउंड द गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड। उस वजह से क्या होगा, जो pH का मेजरमेंट होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा, कम होगा। तो जब साइज ज्यादा होती है, व्हेन साइज इंक्रीजेस द मेजरमेंट और द अल्कलाइन एरर विल बी व्हाट, लेस एज कंपेयर टू द साइज स्मॉल। ठीक है, अगर स्मॉलर साइज होगा तो अल्कलाइन एरर हमको ज्यादा दिखेगी, और अगर साइज बड़ा होगा तो अल्कलाइन एरर हमको कम दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया हियर, दिस इज द कंसेप्ट हियर। जैसे अल्कलाइन एरर होती है वैसे ही एसिड एरर भी होती है। एसिड एरर कौन से सॉल्यूशंस में होती है, जिनका pH इज वेरी वेरी नियर टू 1, pH इज नियर टू 1। ओके, वैसे सॉल्यूशन के लिए एसिड एरर हो जाती है। जहां पे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे एसिड एरर होती है, और जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द H प्लस आयन प्रेजेंट इन द ग्लास मेम्ब्रेन, तो तब वहां पे कौन सी एरर होती है, अल्कलाइन एरर होती है। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर हियर, ड्यू टू द साइज, K plus ion is a bigger in a size, that's why it will less amount of ions will surround the glass electrode, that's why it will show less alkaline error as compared to the other ions. So our correct answer is what, 1 molar KCl solution. Here the next question is, a value of physical variable is found to be in the set of
196, 198, 194, 199, 198. Find out the average and standard deviation for this given problem. यहाँ पे हमको एवरेज क्या आता है वो देखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है वो फाइंड आउट करना है. तो लेट्स राइट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एवरेज. तो एवरेज क्या होगा, सारों का समेशन डिवाइडेड बाय 5. ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 क्वांटिटीज है, दैट्स व्हाई उनका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 से. दैट इज व्हाट द एवरेज. तो लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ दिस. 8 plus 9 plus 4 plus 8 plus 6, it would be 35. Then 9 5s are 45, 46, 47, 48. Then 4 and 5 are what? 9. 985. So what will be the average sum of all the terms divided by 5? So it will be what? 197. तो एवरेज हमको पता चल गया. अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो द डेफिनेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ summation of n summation of x minus xi bar divided by n minus 1. ओके, x क्या है, जो हमारी वैल्यूज है ये. ओके, और ये क्या है, xi इज द एवरेज. ओके, xi इज द एवरेज एंड n आर द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट. ठीक है, तो हम लोग सबका समेशन कर लेते हैं. यहां से मैं राइट लिखती हूँ. पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू इज 196 माइनस क्या करना है, एवरेज, और उसका क्या करना है, स्क्वायर. ओके, और सबकी क्या करनी है, सब समेशन दिया है इसलिए. ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 198 माइनस 197 का स्क्वायर. ओके, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 194 माइनस 197 उसका स्क्वायर, प्लस 199 माइनस 197 उसका स्क्वायर, प्लस 198 माइनस 197 उसका स्क्वायर. ठीक है, और ये सबको डिवाइड करना है हमको n minus 1. What is n? 5. Okay, 5 terms are there, so 5 minus 1. और ये सब क्या है, अंडर रूट में है. सो लेट्स फाइंड आउट हियर. 196 माइनस 197 माइनस 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया डिफरेंस, माइनस 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस, माइनस 2, नो प्लस 2 स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर. ये सब हो गया अंडर रूट में, और 5 माइनस 1 इज व्हाट, 4. Okay, so next one I will write here. 1 minus 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 plus 1. Then 3 square is what, 9 plus 2 square 4 plus 1 square 1 divided by 4. 9 plus 1 10, 11, 12 and 4 16 divided by 4. तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 16 divided by 4. तो ये क्या हो गया, ओवरऑल आंसर अंडर रूट 4. सो अंडर रूट 4 इज व्हाट, 2. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 197 and 2. सो एवरेज इज व्हाट, 197 एवरेज मिला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2. ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल का है. यहाँ पे हमको एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन था, इसलिए मैंने ये फिजिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व किया है. तो अगर तुम लोगों को एवरेज कैसे निकालते हो पता हो, एवरेज इज वेरी सिंपल. सो दिस प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल. एवरेज निकालो और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करो and you can directly find out the value. So this is what the correct answer, 197 and 2. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the pair of light and atomizer resulting highest accuracy or highest sensitivity in atomic absorption spectrometry measurement is. यहाँ पे हमको atomizer और सोर्स कौन सा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है वो फाइंड आउट करना था. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको
एटोमाइजर और सोर्स पता करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री? इन AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। सैंपल में अगर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता करना हो तो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। Overall 70 elements can be analyzed by using atomic absorption spectroscopy। तो यहाँ पे कैसे होता है, अगर हमको सोडियम आयन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो अगर हमको पता करना हो तो यहाँ पे सोर्स यूज होता है। सोर्स कौन सा होता है? होलो कैथोड लैंप होता है, जो जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम प्रेजेंट होता है, विच इज मेड अप ऑफ सोडियम। अगर हमको जो एलिमेंट डिटरमाइन करना है उसी का क्या होता है? कैथोड लैंप बना हुआ होता है। अगर हमको सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो होलो कैथोड लैंप विल बी मेड अप ऑफ सोडियम। अगर हमको पोटेशियम आयन निकालना है, सैंपल में कितने प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो होलो कैथोड लैंप क्या होगा? पोटेशियम से बना हुआ होगा। सो here the source is mostly hollow cathode lamp and the atomizers are of very different types। एटोमाइजर का क्या यूज होता है? वो जो एलिमेंट है जो हमारे सैंपल में प्रेजेंट है वो क्या करता है? एटोमाइजर उसको कन्वर्ट करता है वेपर में। उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है वेपर में, और वो जो वेपर से दे विल एब्सॉर्ब द रेडिएशन डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो जितना ज्यादा एब्सॉर्प्शन हुआ रेडिएशन का उतना ज्यादा क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो सैंपल में। सो फ्रॉम द एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द वेपर्स फॉर्म ड्यू टू द एटोमाइजर present there, we can say that much amount of concentration was present in the given sample। हमारे सैंपल में उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आयंस का, उतना ही वो क्या करेंगे? रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स क्या मोस्टली यूज होता है? होलो कैथोड लैंप। और एटोमाइजर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्लेम एटोमाइजर है, देन इलेक्ट्रोकेमिकल एटोमाइजर है, हाइड्राइड एटोमाइजर है, कोल्ड वेपर एटोमाइजर है, देन ग्लो डिटेक्शन एटोमाइजर है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटोमाइजर विच आर यूज्ड, बट मोस्टली फ्लेम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एटोमाइजर्स आर यूज्ड, और उनमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेम एटोमाइजर में एसिटिलीन का एटोमाइजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो एटोमाइजर दिए हैं यहाँ पे ग्रेफाइट फर्नेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एटोमाइजर में आता है, और दैट इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू अदर एटोमाइजर्स। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सोर्स विल बी होलो कैथोड लैंप एंड एटोमाइजर विल बी ग्रेफाइट फर्नेस। ग्रेफाइट फर्नेस। ओके, सो दिस इज व्हाट अवर करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।